शेर देखिए, अगर सही माने में आप हुजूर सैयद मसूद मिल्लत के आप दीवाने हैं, जो शेर पहुंच रहा है, इसी में मैं आपको चार्ज करने के लिए देखो कि सही माने में आप दीवाने हैं। बहुत बड़ा शेर जा रहा है, देखो कि इस शेर का इस्तेमाल करना जानते हैं। अब बस कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रब कह दे या रसूल अल्लाह। मसरूर कलीमी के गुलामा, वाह 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 वाह, मसरूर कलीमी के गुलामों का यही ऐलान है। वाह वाह। सही माने में गुलाम है तो आप शेर पे खामोश नहीं बैठेंगे। देखना चाहता हूँ कि कैसी आपके अंदर जज्बा है। शेर सुने आप। दुश्मने मसरूर मियाँ, दुश्मने मसरूर मियाँ, दुश्मने मसरूर मियाँ जल कर भस्म हो जाएगा। मसरूर मियाँ के गुलाम मसूद मिल्लत के गुलाम, मसूद मिल्लत के गुलामों का यही ऐलान है। मसरूर कलीमी के गुलाम का यही ऐलान है। मसूद कलीमी के गुलाम का यही ऐलान है। मसूद कलीमी के गुलाम का यही ऐलान है। मसरूर मियाँ के गुलाम, मसरूर मियाँ के गुलामों का यही ऐलान है, का यही ऐलान है। क्या चूर हो जाएगा वल्ला, चूर हो जाएगा वल्ला हमसे जो टकराए, जाएगा वल्ला हमसे जो टकराए। वाह 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 वाह। नहीं चढ़ेंगे, नहीं चढ़ेंगे, नहीं चढ़ेंगे। अली अली, वाह 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 वाह। मियाँ के गुलाम दूल्हा, मियाँ के गुलामों का यही ऐलान है। मसूद कलीमी के गुलाम का यही ऐलान है। मसरूर मियाँ के गुलाम का यही ऐलान है। दुल्हा मियाँ के गुलाम का यही ऐलान है। मसूद कलीमी के गुलाम, मसूद कलीमी के गुलाम का यही ऐलान है, का यही ऐलान है। चूर हो जाएगा वल्ला, चूर हो जाएगा वल्ला हमसे जो टकराएगा। चूर हो जाएगा वल्ला हमसे जो टकराएगा। वाह 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 वाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और एक बार दुआ देके कहते या रसूल अल्लाह। और ये शेर सुन ले आप दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप मजे तमाम उलमा की दुआओं को लेते हुए ये शेर सुन, एक एक शेर सुनिए। तेरे चौखट पे यकीनन भीग लेने के लिए
تیری چوکھٹ پہ یقیناً بھیک لینے کے لیے تیری چوکھٹ پہ یقیناً بھیک لینے کے لیے تیری چوکھٹ پہ یقیناً بھیک لینے کے لیے کہ تیری چوکھٹ پہ ہاتھ میں کاسا لیے سلطان بھی آ جائے گا ہاتھ میں کاسے لیے سلطان بھی آ جائے گا سید کونین زلف پاک جب لہرائے گا سید کونین زلف پاک جب لہرائے گا سید کونین زلف پاک جب لہرائے گا اور آپ چاہتے ہیں کہ اور پڑھیں جی 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 تیار ہیں آپ لوگ جی دعا دے کے کہہ دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مچل کے کہہ دے سبحان اللہ رہنمائے دین و ملت رہنمائے دین و ملت حضرت مسعود واہ 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 رہنمائے دین و ملت حضرت مسعود میاں رہنمائے دین و ملت حضرت مسعود میاں رہنمائے دین و ملت حضرت مسعود میاں مسعود میاں رہنمائے دین و ملت حضرت مسعود میاں شیر محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ اور یہ شیر سنیں سالک راہ طریقت سالک راہ طریقت حضرت مسعود میاں سالک راہ طریقت حضرت مسعود میاں سالک راہ طریقت حضرت مسعود میاں
کر حضرت مسعود میاں. اور دعاؤں کے ساتھ یہ شعر بھی آپ کے حوالے اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. عشق سرکار دو عالم، عشق سرکار دو عالم کی بدولت ہو گئی. 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 کیا اونچ شان عظمت، اونچ تیری شان عظمت حضرت مسعود میاں. اونچ تیری شان عظمت حضرت مسعود میاں. اونچ تیری شان عظمت حضرت مسعود میاں. حضرت مسعود میاں. حضرت مسعود میاں. حضرت مسعود میاں. کیونکہ آپ جان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کے نظروں سے کہ ہندوستان کے دو عظیم خطیب جن کی تاریخ لینے کے لیے مہینوں پہلے کانٹیکٹ کرے تو بھی تاریخ نہ لے گئے. وہ خطیب اعظم ہے ہندوستان، لوٹس اسپیکر ہے ہندوستان، حضرت العلامہ حضرت علامہ وہ مولانا ڈاکٹر مفتی مصور رضا صاحب قبلہ ممبر نور پہ جلوہ فکر ہے. حضرت کی جو ہے آپ کو جو ہے نورانی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے. بہت دیر سے حضرت بیٹھے ہیں، کسی خطیب کو زیادہ دیر بیٹھانا بھی ٹھیک نہیں. اور انشاءاللہ میں جو بعد میں آنے والا ہوں حضرت کے بعد تو میں وہ کلام آپ کے حوالے کروں گا کہ جو کٹرا کی زمین عشق پر تشریف لاتے ہیں. انشاءاللہ میں پیش کروں گا کہ جو کٹرا کی زمین عشق پر تشریف لاتے ہیں وہ اولاد علی آل نبی کا فیض پاتے ہیں. بہت خوبصورت کلام ہے. انشاءاللہ میں آپ کو حضرت کے بعد کلام آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا. اور صرف میں ایک مطلع آپ کو دے کے جا رہا ہوں، دیکھوں کہ آپ تیار ہیں کہ نہیں اس کلام کو سننے کے لیے. میں ایک مطلع دے رہا ہوں ایک دوسرے کلام کا. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، تڑپ کے کہہ دے یا رسول اللہ. مطلع دے کے جا رہا ہوں. اگر آپ تیار رہیں گے تو میں وہ بھی پڑھوں گا. اور جو میں فرسٹ پڑھا آپ کا فولاد کا دل پتھر کا پارا پارا ہوتا ہے وہ کلام بھی آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ. آج اگر آپ سن لیں پھر انشاءاللہ 3 تاریخ کو آپ کے علاقے میں رہنا ہے، وہاں بھی مجھے سنانا ہے اور آپ کو خوبصورت سے خوبصورت سا کلام آپ کے حوالے کروں گا. محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، تڑپ کے کہہ دے یا رسول اللہ. جو راتن کی اور کٹرا کی میں جب اس کلام کو پڑھتا ہوں نا تو آپ دیکھیے گا میرے درد میں کس طرح پڑھتا ہوں، آپ کو کس طرح سے. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. جو کٹرا کی زمین عشق پر تشریف لاتے ہیں، جو کٹرا کے زمین
گرمی عشق نبی میں جو پگھل جاتے ہیں، گرمی عشق نبی میں جو پگھل جاتے ہیں، بچ کے وہ ہر مصیبت سے نکل جاتے ہیں۔ گرمی عشق نبی میں جو پگھل جاتے ہیں، بچ کے وہ ہر مصیبت سے نکل جاتے ہیں۔ کہہ دو منافقوں سے اپنی اوقات میں رہنا، ہائے ہائے واہ، کہہ دو منافقوں سے اپنی اوقات میں رہنا، ہم مسرور کے کتے ہیں بھاگ۔ ہائے ہائے واہ 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 واہ، اپنی اوقات میں رہنا، کہہ دو منافقوں سے اپنی اوقات میں رہنا، ہم مسرور کے کتے ہیں بھاڑ کے ہائے ہائے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بلا تاخیر و تمثیل آپ تمامی حضرات کے سامنے خطیب اعظم عالم اسلام ڈاکٹر حضرت علامہ مولانا مصور رضا مصباحی نبی جو رونق کی اسٹیج ہے، آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب دیکھیے کچھ ہی دیر میں آل نبی رونق کی اسٹیج ہونے والے ہیں، تو آج میں بتا دوں حضرت علی کی تعارف سے کہ شاعر کہتے ہیں کہ آج تم کو میں بتا دوں، تم کو میں بتا دوں آج علی کیا کیا ہے، تم کو میں بتا دوں آج علی کیا کیا ہے۔ کعبہ علی کا ہے، گنبد خضرا علی کا ہے۔ ہائے ہائے واہ 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 واہ، تم کو میں بتاؤں آج علی کا کیا کیا ہے۔ کعبہ علی کا ہے، گنبد خضرا علی کا ہے۔ منکر نکیر دیکھ کر آپس میں کہنے لگے، منکر نکیر دیکھ کر آپس میں کہنے لگے، کیا پوچھوں اس سے، اس کے پاس تو شجرہ علی کا ہے۔ ہائے ہائے واہ 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 واہ، آپس میں کہنے لگے، کیا پوچھوں اس سے، اس کے پاس تو شجرہ علی کا ہے۔ آئیے ڈاکٹر مصور رضا مصباحی صاحب۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جگہ نہیں، جگہ نہیں، بولو تو اسٹیج چھوڑ لی وہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل القرآن ونزل الفرقان وانعم علینا بالایمان وتمننا بالاحسان والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھیں اللهم صل على صلی اللہ سیدنا مولانا محمد کو موجود مترد بین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج پھر ایک بار کریمی بھائیوں کی قسمت کا معراج ہے کہ سرکار ہماری اور آپ کی آبادی میں ہم پر اور آپ پر احسان فرماتے ہوئے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جس آبادی میں کسی اولاد رسول کا قدم پڑتا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس آبادی میں 40 دنوں تک مسلسل رحمتوں برکتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔
वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान आबादी और समाज से किसी औलाद रसूल को थोड़ी सी भी रंजिश और नाराजगी हो जाए, अल्लाह वहां से बरकतों के रास्ते बंद फरमा देता है। ये हमारे सिद्धू बाबू मैं इनको आज बहुत डांटा इनको, चूंकि बहुत क्लोज है ये। मैं कहा रास्ता बताने वाला तुमको आगे आना चाहिए, तो घबरा के गुस्सा के वहां बैठा हुआ है। बहरसूरत हम और आप सब लोग सरकार मसूद मिल्लत के गुलाम और दीवाने हैं, और रब से यही दुआ करते हैं कि मौला हम सबको हमेशा इसी गुलामी में जिंदगी बसर करने की तौफीक मरहमत फरमाए। सबसे बड़ी गुलामी तो यही है कि उसकी गुलामी अपनाई जाए जो आकाओं के आका होते हैं। वाह हाय हाय वाह क्यों आलतू फालतू जगह के लोगों के हम गुलाम बने आहा, जो खुद किसी के गुलाम हो। हाय 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 वाह वाह हाय हाय साहब हम ऐसे आकाओं के गुलाम बने जो किसी के गुलाम ही नहीं है। हाय हाय वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छी किस्मत अल्लाह ने आपको दी है, कितने एहसानात अल्लाह के आप पर हैं। कभी रात की तन्हाई में आप अल्लाह के एहसानात को गिनने की आप कोशिश करेंगे ना, अल्लाह की कसम आपकी आंखें सावन भादों की बारिश बरसाएंगे। अल्लाह चाहता तो हम में से सबको या कुछ को जानवर बना देता, कुछ कर सकते थे नहीं, हमारे अथॉरिटी पे हमारे अख्तियार में कुछ भी नहीं था, मगर अल्लाह का एहसान तो देखो मुसलमानों कि अल्लाह ने जानवर न बनाकर हम में से सबको इंसान बनाया। इंसानों में भी आम इंसान बना था, वो वाला वो भी इंसान है, मगर उस वाले इंसान की फहरिस्त और जमात में अल्लाह ने पैदा न फरमाया, अल्लाह ने आजान देने वाले की जमात में पैदा फरमाया। वाह रब का कितना बड़ा एहसान है। और आजान देने वालों में भी उतार चढ़ाव नशे व फराज है, तो अल्लाह ने अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया। वाह 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 और सुन्नियों की फहरिस्त में भी अल्लाह ने हम गुलामों को दामन दिया, तो अताए रसूल के खानदान का दामन अता, हाय हाय वाह 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 जो नजरे मुस्तफा के मुंतखब थे। सरकार गरीब नवाज के खानदान के किसी फर्द के पांव के धूल का जर्रा भी अगर किसी को मिल जाए, जर्रा तो मैं नहीं कह सकता साहब, गुस्ताखी है, औलाद रसूल के पांव के नीचे के धूल को हम इस कदर अकीदतमंद है कि उसको हम जर्रा भी नहीं कह सकते। वो तो हमारे नजदीक मोतियों से ज्यादा कीमती चीज है। जी जी वाह इशारे में बातें होंगी, क्योंकि ये कोई मैं नया आज कलीमी भाइयों के बीच में नहीं आया। हिंदुस्तान के दूसरे जलसे वाले मुसव्विर रजा का इंतजार करते हैं कि कब आएगा, नहीं आएगा, कहां पहुंचा। खुदा की कसम कन्हा ये कलिया चक और ये कलीमी भाइयों का पूरा इलाका है कि मुसव्विर इंतजार करता है कि वहां से कब हुक्म होगा। हाय हाय वाह अभी भी मेरे व्हाट्सएप पर नंबर पड़े हुए हैं, आज भी कंफर्मेशन के जलसे वाले पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ फला तारीख को आप आ रहे हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मसरूफियत बहुत है, मगर मैं खुद सरकार मसूद मिल्लत के गुलामों से पूछता हूँ कि हुजूर की तशरीफ आवरी कब इलाके में हो रही है। मुझे यकीन होता है कि जब हुजूर की तशरीफ आवरी होगी तो रहमतों, बरकतों और फैजो करम के दो चार छींटे मुसव्विर पे जरूर बरसेंगे और हमेशा बरसेंगे, और इसी से मैं फैजियाब होता हूं। और इतना करम मुझे मिला है, मेरी दस्तारबंदी हुई 2010 में, मैं अपना तजर्बा आपको शेयर कर रहा हूं। मेरी दस्तारबंदी 2010 में हुई, तब से मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से मैं जुड़ा रहा। बड़ी मेहनत मैंने की, बड़ी मशक्कत की। मेहनत कौन नहीं करता था? सिर्फ मेहनत से इंसान को कामयाबी नहीं मिलती है। अगर सिर्फ मेहनत से एक आदमी कामयाब होता तो ईंट पाथने वाला जो भट्ठे में काम करता है वो महलों में रहने वाले शेठों से ज्यादा मेहनत करता है, मगर कामयाबी उनको मिलती है और नाकामी उस बेचारे ईंट पाथने वाले को मिलती है। मेहनत तो मैंने की, मगर मेरी मेहनत काबिल कबूल ना हो सकी। मगर सरकार की जब मैंने मुलाकात की और हजरत से मैंने दुआएं ले ली। अभी इन साल बिहार में एग्जाम हुआ बीपीएससी का,
बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, उसके जरिए टीचर सिलेक्शन किए जाते हैं, टीचर्स मुंतखब किए जाते हैं। अल्लाह की कसम, मुसव्विर रजा महीने का 30 दिन हिंदुस्तान के 30 बड़े बड़े शहरों में घूमता है। कभी किताब पढ़ने की फुर्सत नहीं मुझे मिली, मगर जब उसके बावजूद मेरे ऊपर जब हजरत का करम हुआ तो मैं बिहार के उस भयानक और हार्ड एग्जाम में पूरे बिहार में 22वां रैंक पर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिलसिलाए कलीमी जिंदाबाद, सिलसिलाए कलीमी जिंदाबाद, हुजूर मसरूर मियां का दम नहीं छोड़ेंगे, हुजूर मसऊद मियां का दम नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। वाह, मुझे याद है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी मर्तबा जब हजरत से मैंने मुलाकात की थी, ये गुलाम जब हाजिर कदमों के पास हाजिर था, तो हजरत के कदमों मुबारक को मैंने टच करके कहा था, हुजूर मेरा बहुत बड़ा एग्जाम है, आप दुआ फरमा देंगे। सरकार ने मेरी पुष्ट पर हाथ रखकर कहा, जाओ मुसव्विर, तुम कामयाब रहोगे। खुदा की कसम, मैं जब एग्जाम में बैठा, जहां जेएनयू का लड़का, जहां जामिया मिलिया का लड़का, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे, उसी एग्जाम में शाना बशाना बैठकर ये नमाज पढ़ने वाला, ये दाढ़ी रखने वाला, ये मौलवी की सिफत रखने वाला, जब उन लड़कों की सोहबत में सतत में बैठकर एग्जाम दिया है, जहां उनका नाम था वहां सरकार के गुलाम का वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, फैज कहा जाता है, इसी को करम कहा जाता है, वाह वाह वाह। इसी को निगाहे करम हम लोग कहते हैं। मेहनत से इंसान कामयाब थोड़ी होता है, मेहनत हो। अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, करामत मसऊद मियां जिंदाबाद, करामत मसऊद मियां जिंदाबाद, नारे हैदर। वाह, सुभान अल्लाह। अगर मेहनत से सिर्फ कामयाबी मिलती तो हर मेहनत करने वाला कामयाब होता, मगर हम जानते हैं, आप जानते हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाला अगर उनकी निस्बत किसी अच्छी चीज से लग जाती है, उनको सोहबत किसी अच्छी चीज से की मिल जाती है, उनका ताल्लुक किसी अच्छी जगह से हो जाता है, तो जो इंसान झोपड़पट्टी में रहता है, झोपड़पट्टी में रहने वाला भी अपने को बड़ा बादशाह समझता है। इसलिए करीमी भाइयों, आप अपनी किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान आप पे फरमाया। पीर भी दिया तो कोई ऐसा के पीर नहीं, अपने नबी की औलाद के। ख्वाजा मसूद मियां का दाम, सिलाए चिश्तिया, सिलाए कलीमिया, नारे हैदरी। मैं एक फार्मूला बताता हूँ आपको बड़ी जरूरत के साथ। हर शख्स को अपने अपने पीरों की तारीफ करने का हक हासिल है, वो उनकी किस्मत है, अल्लाह उनकी किस्मत उनको मुबारक हो। किसी एक भाई को मेरी बात समझना, अब देखता हूँ सिद्धू बाबू तुमको कब समझ में आती है। मैं आपसे कहता हूं साहब कि हर मुरीद को अपने अपने पीर पे फख्र करने का हक हासिल है, वो अपनी किस्मत पे नाज करे। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी किसी से मुकाबला हो, जब भी किसी से तुलना हो, जब भी कोई कॉम्पिटेटिव समाज और कॉम्पिटेटिव माहौल में आप बैठ जाए, वहां चंद अशखास बैठे हो, अपनी अपनी खानकाहों की तारीफ, अपने अपने पीरों की बड़ाई, अपने अपने पीरों के पीर की बड़ाई लोग करने लगे, उस वक्त आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आपको कटरा शरीफ का नाम भी नहीं रखना है, आपको सरकार मसूद मिल्लत का नाम भी नहीं रखना है, आपको सरकार मसूद पिया का नाम मुबारक भी नहीं रखना है। बस उन तमाम अशखास की मौजूदगी में कोई अपना पीर का नाम बोले, उन्हें बोलने दिया जाए। जो अपने पीर की तारीफ करे, उन्हें करने दी जाए। कोई बोले कि मेरा पीर हवाओं में उड़ता है, अच्छी बात है। कोई बोले पानी पे तैरता है, अच्छी बात है। उस वक्त खामोशी से कलीमी भाइयों, आप अपने पीर का नाम न बताना, आप सिर्फ यही कहना कि मेरा पीर कोई और नहीं, मेरा पीर एक औलाद रसूल और सैयद ज़ादा है। यही कहना आपकी जीत और आपके दलील के लिए सबसे बड़ी मजबूत बात होगी, क्योंकि औलाद रसूल बनना ये सबसे मजबूत दलील है। एक आदमी पीर बन सकता है, एक आदमी आलिम बन सकता है, एक आदमी मुफ्ती बन सकता है, एक आदमी मुहद्दिस बन सकता है, एक आदमी मुफक्किर बन सकता है, एक इंसान आईएएस बन सकता है। क्योंकि आईएएस बनना मेहनत का दखल है, आईपीएस बनने में मेहनत का अमल दखल है, मुफ्ती
मुफ्ती बनने में मेहनत का अमल दखल है, हाफिज कुरान बनने में मेहनत का अमल दखल है। आज हमारा बच्चा मेहनत करे 3 साल के बाद हाफिज कुरान, 10 साल मेहनत करे अच्छा शानदार आलिम दीन, 15 साल मेहनत करे शानदार मुफ्ती बनेगा, और मेहनत करेगा मुफ्ती आजम बनेगा, और मेहनत करेगा मुहद्दिस आजम बनेगा, और मेहनत करेगा आईएएस बनेगा, और मेहनत करेगा आईपीएस बनेगा। यानी दुनिया में तमाम चीजों का ताल्लुक इंसान के इक्तिसाब से है, इंसान की मेहनत से है, इंसान के कष्ट से है, इंसान के दौड़ भाग से है, इंसान की जुस्तजू से है, इंसान की तफ्तीश से है, इंसान के रिसर्च से है, इंसान के मेडिटेशन से है, इंसान के चिंतन से है, इंसान के मंथन से है। यानी जिस चीज का ताल्लुक चिंतन से होता है, इंसान चिंतन करेगा अल्लाह वो चीज अता फरमाएगा। जिस चीज का ताल्लुक मेहनत से है, इंसान मेहनत करेगा अल्लाह अता फरमाएगा। जिन चीजों के ताल्लुकात रिसर्च से होते हैं, इंसान रिसर्च करेगा अल्लाह उसे अता फरमा देगा। आदमी रिसर्च किया चांद पे पहुंच गया, इंसान रिसर्च किया सूरज की रोशनी को कैप्चर किया। यानी जिन जिन चीजों के ताल्लुकात मेहनत और मशक्कत से है, वो इंसान जब जब करता रहेगा वो उसमें कामयाबी उसको मिलती रहेगी। मगर मैं आपको डंके की चोट पर एक बहुत बड़ा पैगाम देना चाहूंगा। सरकार सैयदी आला हजरत के कांधे पर जब सैयदजादे हैं, सरकार को महसूस हुआ कि किसी सैयदजादे को कोई सैयदजादे मुझे उठा लिए और अपने कांधे पर बिठा लिए। आपने सोचा बड़ी गुस्ताखी होगी, आप फौरन गोली को नीचे रखे, आपने कब्र मुबारक को पोछा लिया। आप फरमाते हैं ए सैयदजादे, ए अल्लाह के रसूल की औलाद, आप मुझे अपने कांधे पर बिठाए हैं, आइए डोली पर आप वापस बैठिए। मैं अपने को माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने को माफ नहीं कर पाऊंगा। सरकार आला हजरत, और यही मसले के आला हजरत है साहब, मसले के आला हजरत की थीली लोग समझते नहीं। मैं समझाता हूँ कि मसले के आला हजरत को आला हजरत ने कैसे समझाया है। सरकार आला हजरत समझाते हुए कहते हैं सैयदजादे थे कि आप गोली पर बैठिए, आपने गोली पर बिठाया, वापस उतनी दूर तक आप ले गए जहां से सैयदजादे वो आपके गांव के थे, उस सैयदजादे को आप वापस नीचे ले गए। आपने अमल से दुनिया को बताया। ए दुनिया वालों, मैं 1000 किताबों का मुसन्निफ हूँ, ये मुसन्निफ बनना आसान है। मैं मुफ्ती हूँ, मुफ्ती बनना आसान है, मुहद्दिस बनना आसान है। आपने ऐलान फरमाया, और यही मसले के आला हजरत का कॉन्सेप्ट है कि दुनिया का सारा फन इख्तियार करना, हर चीज बनना आसान है, मगर सैयद बनना इंसान के बस में नहीं। आदमी मेहनत करेगा मुफ्ती आजम बनेगा, मेहनत करेगा वकील आजम बनेगा, मेहनत करेगा साइंटिस्ट बनेगा, मेहनत करेगा आईएएस बनेगा, मेहनत करेगा आईपीएस बनेगा। मगर पूरी दुनिया मिलकर मेहनत करके अगर एक सैयद को बनाना या पैदा करना चाहे तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, नहीं बनते नहीं। ये चीज इन चीजों के ताल्लुकात तेरी मेहनत से नहीं, मेरी अता से है। मैं जिसके घर चाहता हूँ औलाद रसूल पैदा वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ मौला, हाँ मसरूर मैं बताऊं आपको, मैं कल फिरोजपुर में था, परसों भी मैं फिरोजपुर के जैसे था। वापस मैं स्कूल गया, हाई स्कूल का मैं एक छोटा सा टीचर भी हूँ। फिर स्कूल से इधर आया, कहीं भी रेस्ट करने नहीं की, और 1 मिनट भी मुझे सोचने तक का मौका नहीं मिला कि मुझे आज क्या बोल रहा है। रूहानी तौर पर सरकार दूल्हा पिया का फैज बढ़ रहा था। उन्हीं फैज के दरिया से चंद कतरे मुझे मिल गए, चंद ऐसी बातें आ गई दिलो दिमाग पर जो यकीनन आज की तारीख में हमको आपको इन सब बातों पर सोचने की जरूरत है। हुक्म हुआ है कि मुझे एजुकेशन पर चंद गुफ्तगू की जाए, चंद बातें हो जाए, ताकि चूंकि ये वाहिद ऐसे हमारे हुजूर पीर तरीकत हैं जिनकी फरमाइश होती है, जिनका हुक्म होता है कि आने वाला खतीब इन मौजूआत पर गुफ्तगू करे। और ये बहुत बेहतर बात है क्योंकि हुजूर ने महसूस किया है कि आज की तारीख में हम कलीमी भी हैं, हम अशरफी भी हैं, हम रज़वी भी हैं, हम में से बहुत लोग बरकाती भी हैं, हम में से बहुत लोग नक्शबंदी भी है, चिश्ती भी है, मगर सारी चीज है। मगर एक कभी ये है साहब कि हम जाहिल भी हैं।
एजुकेशन के इंपोर्टेंस से कौन इनकार कर सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, उस चीज की बहुत ज्यादा कमी है। हम अगर आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो हुजूर पीर तरीकत के दामन से जुड़ जाते हैं, मगर दुनिया की थोड़ी बहुत कामयाबी के लिए भी तो सही हमें जरूर एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। आज हमारे माशरे की जो तबाहियां हैं, इन तमाम तबाहियों की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह ये नहीं कि हमारा हाकिम कोई जालिम मुसल्लत किया गया है। हमारे बच्चे जब बौखला जाते हैं, अपने समाज को चलता हुआ देख कर बोलते हैं कि हजरत ये फलाने साहब जब से हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हैं तब से हमारी तबाही हो गई, ये फलाना जब से मुख्यमंत्री बना है तब से हमें बर्बाद किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा नहीं साहब, हमारी बर्बादी का जामिन और रिस्पॉन्सिबल कोई दूसरा नहीं, हम खुद हैं। हमारे बच्चे जाहिल हैं, तरक्की कैसे मिलेगी? हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं, तरक्की कैसे मिलेगी? और ये जो आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं मगर हुकूमत उन्हें नौकरी नहीं देती, मैं कहना चाहूंगा नहीं, गलत सोच आपकी है, गलत कॉन्सेप्ट आपके है, गलत फिक्र आपकी है। आप ईमानदारी से अपने बच्चे को पढ़ाइए। आपका बेटा जिस दिन ईमानदारी से पढ़कर अच्छी सनद लेकर अच्छा समाज का अच्छा व्यक्ति बनेगा, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपके बच्चों की तरक्की को रोक सके। हमारी समाज में एक मौलाना हमारे साथ में थे, मौलाना शाहिद रजा मिसबाही, गया जिला बिहार के रहने वाले। 2017 में यूपीएससी एग्जाम के एक उम्मीदवार की हैसियत से, वो 2017 में उम्मीदवार की हैसियत से यूपीएससी के एक उम्मीदवार की हैसियत से एग्जाम में बैठे। 18 में उसका रिजल्ट आया। शाहिद रजा मिसबाही है, मिसबाही आलिम दीन हुआ करते हैं, चेहरे पर एक मुश्त दाढ़ी है, सर पर बरकाती टोपी लगी रहती है, 5 वक्त नमाज के साथ साथ तहज्जुद, चाश्त और इशराक पढ़ना जिनकी आदत हो, मदरसे में बाज़ाब्ता पढ़कर जो हिफ्ज़ किया, जिन्होंने आलिम दीन बना, जो आलिम दीन बनने के बाद, वो फाजिल बनने के बाद तब जाकर यूनिवर्सिटी की दहलीज पर कदम रखे, पढ़कर जब यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए एग्जाम में जब बैठते हैं, आपका ज़हन साफ होना चाहिए। आप में से अक्सर बेशतर सोचते ये है कि हजरत मैं अपने बेटे को पढ़ा कर क्या करूंगा, हुकूमत तो जालिमों की है, शासन तो जालिमों की है, ये जालिम हमारे बच्चों की तरक्की होने नहीं देंगे, ये जालिमों की बुनियाद पर हमारे बच्चों को सर्विस नहीं मिलेगी, हमारा बच्चा ऑफिसर नहीं बनेगा, हमारा बच्चा ऑफिसर नहीं बनेगा, हमारा बच्चा मास्टर नहीं बनेगा, हमारा बच्चा प्रोफेसर नहीं बनेगा, हमारा बच्चा आईएएस नहीं बन पाएगा। मैं कहना चाहूंगा, हाँ 2017 की बात कर रहा हूं, 2017 में उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक किसकी हुकूमत थी आप बखूबी जानते हैं, मगर उस 2017 के यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा की उम्मीदवारी की एक जिम्मेदारी लेकर एक शख्स जब बैठता है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे बरकाती टोपी है, उसके पास फोटो भी है तो उसमें दाढ़ी है, उसकी शनाख्त है तो दाढ़ी से, उसकी पहचान है तो मौलवी होने से, उसकी अलामत है तो मौलाना होने से, मगर वो लड़का जब 17 में उम्मीदवार बना है, 18 में जब यूपीएससी के एग्जाम का रिजल्ट आता है, अल्लाह की कसम उसी रिजल्ट की फहरिस्त में, उसी रिजल्ट में जहां मोहन का नाम था, जहां सोहन का नाम था, जहां गणेश का नाम था, जहां गणेश के भाई का नाम था, उसी फहरिस्त में 5 वक्त नमाज पढ़ने का आदमी, बरकाती टोपी और चेहरे पे दाढ़ी सजाने वाले शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम सामने आया। ये इस बात की दलील है, जो इंसान पढ़ाएगा उसकी ताकत, इल्म की ताकत इतनी होगी कि उसका दुश्मन चाहे कितना ताकतवर हो, एजुकेशन की ताकत से कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज जो हमारे बच्चे ऑफिसर नहीं बन पा रहे हैं, किसकी गलती है? हमारी गलती है। हम अपने समाज में कितने बच्चों को ऑफिसर बनाते हैं, हमने कितने आईएएस बनाए अपने समाज में, हमको गौर करना होगा। हमने कितने आलिम दीन पैदा किए, हमें गौर करना होगा। हमारे कितने बच्चे हाफिज बने, हमें सोचना पड़ेगा। हम में से कोई आज की तारीख में भिखारी नहीं, सब पैसे वाले हैं, 500,000 रुपये पर डे सब कमाते हैं, सिवाय एक आलिम के। इस दौर में आलिम ही सिर्फ कमजोर होते हैं मादी एतबार से, बाकी सबकी तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होती है। उसके बावजूद अगर कोई आदमी इस जमाने में अपनी औलाद को न पढ़ा सके, मैं समझता हूँ वो आदमी अपने समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, अपने माहौल का सबसे बड़ा दुश्मन है, अपनी सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे कम से कम हमको ये तो सोच कर अपनी औलादों को पढ़ाना चाहिए कि तालीम इस्लाम मजहब में इस कदर इंपॉर्टेंस है, इस कदर अहमियतों का हामिल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एजुकेशन के फरोग के लिए, तालीम की अहमियत को दुनिया में बताने के लिए आपके पैगंबर, हमारे मुस्तफा, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिस मुस्तफा का आप कलमा पढ़ते हैं, जिस मुस्तफा के
नाम पर जान देने की हम और आप कस्में खाते हैं, उस मुस्तफा की तारीफ कभी आपने पढ़ी है? वो मुस्तफा करीम जंग बदर के बाद क्या रोनमा आपने फरमाया, क्या दुनिया को आपने साबित किया? बदर के मैदान में मुसलमानों के साथ दुश्मन बैठकर खड़े हो गए, एक एक करके मुसलमानों को परेशान करने के लिए हरबे अपनाते रहे, मगर अल्लाह का करम हुआ, मुसलमानों को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई और 70 से ज्यादा काफिरों को मुसलमानों ने पकड़ के अपने चंगुल में लाकर कैदोबंद की मंजिलों में डाल दिया। मुसलमान काफिरों को कैद कर दिए। अब 2-4 दिन के बाद मुसलमानों ने आपस में मशवरा के लिए एक मीटिंग रखी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ फरमा है, वहाँ मौला अली भी मौजूद है, वहाँ सरकार मौला अली की मुबारक मौजूदगी है, वहाँ हुजूर सरकार उस्मान गनी भी मौजूद है, वहाँ फारूक आजम भी मौजूद है, वहाँ सिद्दीक अकबर भी मौजूद है और दीगर सहाबा मौजूद है। सरकार आप फरमाते हैं, सरकार फरमाते कि बताओ कैसे क्या किया जाए, आपने मशवरा लेना चाहा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज की तारीख में अपने दुश्मनों से बदला लेने का जज्बा हमारे दिलों में कितना रहता है? थोड़ी सी खराश दिलों में किसी के ताल्लुक से रहे, अगर अकेले में हम उसको पाते हैं, उसकी कॉलर पकड़ते हैं, उसकी साइकिल छीनते हैं, उसकी बाइक की चाबी लेते हैं, 100 रुपया किसी से मुझे लेना रहे और 6 महीना हो जाए वो पैसा न दे, तो जहां मुलाकात होगी वहीं मारपीट शुरू, क्योंकि हमारे अंदर इंतकाम का जज्बा है, हमारे अंदर रिवेंज का जज्बा है, हमारे अंदर बदला का जज्बा है। बदले की भावना लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अपने दुश्मन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सामने वालों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर वहां मुस्तफा की बारगाह में ऐसा वैसा मामूली दुश्मन नहीं, ऐसा दुश्मन मौजूद है जो अभी से कुछ दिन पहले मुस्तफा करीम की गर्दनें काटने की जिन लोगों ने कसमें खाई थी, जिन्होंने मुस्तफा के दंदारे मुबारक को कुछ लोगों ने शहीद किया था, जिन्होंने मुस्तफा करीम के ऊपर पत्थरों की बारिशें की थी, वो दुश्मन जो मुस्तफा करीम के वजूद को मिटाने के लिए तहरीकें चलाए थे, आज नबी की बारगाह में हाजिर है। गुलाम बनकर नहीं बल्कि मुक़य्यद होकर आए हैं, कैद में बंद है, कैदो बंद की मंजिलों से गुजर रहे हैं। मुस्तफा करीम की बारगाह में सहाबा से मशवरा लिया गया है। हमसे अगर आपसे मशवरा लिया जाए ऐसी सिचुएशन में, तो हम लोग बोलेंगे इसका हाथ काटा जाए, पहले इनका पांव काटा जाए, उसके बाद इनको उल्टा लटकाया जाए, कोई बोलेगा इनकी बूटी की जाए, कोई बोलेगा इनको कुटिया कर जानवरों को खिला दिया जाए। यानी जैसा दिमाग वैसा फैसला लोग करेंगे। मगर मुस्तफा की बारगाह से जो दो बड़े फैसले हुए, एक फैसला तो ये हुआ कि उन 70 लोगों से कहो जिनके पास पैसे होंगे, वो लोग पैसा देकर रिहाई पा सकते हैं। हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे सहाबा के, हुजूर चंद लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा है नहीं कि वो आजादी हासिल कर सके। सरकार फरमाते हैं उसके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि उनसे जाके पूछिए उन लोगों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग अकेले हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, मैं मुफ्त में उसे छोड़ दूंगा। अभी नहीं बोलेंगे, मेरे मुस्तफा ने कहा अपने दुश्मनों से तालीम हासिल करने का जो आपने शौक दिलाने की स्टार्टिंग पीरियड ऑफ इस्लाम में जो आपने शुरू फरमाई थी, वो पूरी दुनिया की तारीख इस बात के लिए क़यामत तक के लिए शाहिद रहेगी कि जिस जमाने में एजुकेशन की अहमियत पर गुफ्तगू करना और एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए बातें करना, तहरीकें छेड़ना दुनिया के लिए यह बहुत मुश्किल तरीन तहरीक बन चुकी थी, उस जमाने में इस्लाम के पैगंबर ने अपने दुश्मनों से, अपने मानने वालों को पढ़ना जरूरी करार दिया। मुसलमानों, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, कमी सिर्फ यह है कि हमारे पास क्वालिटी नहीं, हमारे बच्चों में क्वालिटी नहीं। वो बाप अपने बच्चों का सबसे बड़ा जालिम बाप है, जो बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता का सफर करवाता है। बाहर जाके खटना हराम नहीं इस्लाम में, बाहर खटे, घर के काम करे, काम करना मना नहीं। पहले अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, उसको एजुकेशन की ताकत दी जाए। जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, दुनिया की कोई सोसाइटी और दुनिया का कोई ऐसा समाज नहीं जो हमको बैठने का हक देगा। आज पूरी दुनिया में हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों की तादाद कितनी है वकीला की जमात में। मैं आप में से पूछता हूं कितने वकील हैं, तो आप उठा के बोले तो आप में से कितने लोग वकील हैं? अरे भाई साहब, आप में से कितने वकील हैं? सर उठाओ हाथ, इतनी अफसोस की बात। सर उठाओ उठाओ। एक वकील है
میں پوچھتا ہوں اتنی بڑی تعداد ہے، 2 شخص اگر وکیل بن جائے یہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے. 2 کو کل عدم سمجھا جاتا ہزاروں کے بیچ. مطلب کچھ نہیں، نتھنگ. 1000 100 سینکڑوں ہزار میں اگر ایک آدھ دکان اگر کوئی کامیاب ہو جائے 2-3% بچے ہمارے یو پی ایس سی ایگزام دیتے ہیں، 2% یا 2.5% یا 3% بچے. کیا وکیل صاحب 3% بچے ہمارے یو پی ایس سی کے ایگزام کریکٹ کر پاتے ہیں. 3% مطلب نتھنگ. ہم ہندوستان میں اگر بولتے ہیں کہ ہم 14% تو تعلیم میں بھی تو 14% ہم اپنے بچوں کو بنائیں. بہت شوق سے بولتے کلیا چک ہمارا علاقہ، اچھی بات ہے. کلیا چک میں کتنے ہمارے آئی ایس بنے اس سال، کتنے بچے ڈاکٹرز بنے، کتنے بچے ہمارے وکیل بنے، اس پر کون نظر دوڑائے؟ ہمارے پاس بڑی بڑی تنظیمیں چلتی ہیں، ہمارے پاس بڑی بڑی تحریکیں چلتی ہیں. کبھی سرکار حمید نواز کے نام پر، کبھی سرکار مسعود پاک کے نام پر، کبھی سرکار اعلیٰ حضرت کے نام پر، کبھی سرکار مختوم سمنا کے نام پر، کبھی سرکار مہاراجا کے نام پر. اپنے اپنے اعتبار سے لوگ طریقے بناتے ہیں. مگر میں پوچھتا ہوں ان تمام تحریکات اور موومنٹس میں کوئی ایک تحریک ایسی کیوں نہیں بنتی جہاں پر غریب بچوں کو ہم ان کے سماج سے نکال کر مدرسے میں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ڈالنے کی کوشش کریں. ایسے بچوں کو جن کے ماں باپ کے پاس